Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper first of BA part first and Foundations of Political Science, and in this video we will discuss about the interdisciplinary approach, and today we will talk about the correlation between political science and geography. So let's start. There is a close relation between political science and geography, and this goes without saying that the geographical conditions in particular and physical environment in general impress upon the character and national life of the country. Not only this, they impress upon the national policies and the structure and functions of the governments in a large measure. A political investigator studies geography with a view to know the influence of the geographical conditions and the physical environment on political science. Geopolitics gives him useful information regarding the study of the origin and growth of political institutions. For example, it is generally admitted that the mountainous and landlocked character of Switzerland has influenced the political institutions of that country to a great extent, and in his book Nature and America, Professor Scheller has emphasized the importance of the British Channel in the history of England. He says that the independent political development of England for the last 1,000 years has been in large part due to the measure of protection afforded by the British Channel. So geopolitics is regarded as a standing among the sciences. Geopolitics deals with the application of political and economic geography to the external problems of states, notably problems of national power, frontiers and possibilities. And since territory is an essential feature of a state, geopolitical factors naturally influence political activities and national policies. The next one is difference between political science and geography. As political science is the discipline that deals with the state, the government, the political aspect of life, and the political behavior of a person, while geography deals with it is the science of the earth's surface, from physical features, natural, and here comes the climate, production, population, rivers, etc. अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान और भूगोल के आपस में रिलेशन के बारे में। तो दोनों जो विषय हैं उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरा घनिष्ठ संबंध रहा है, और जो जियोग्राफिकल भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, भौगोलिक जो कंडीशंस होती हैं, वो एक देश के जो नागरिकों का जो चरित्र है, उनका जो राष्ट्रीय जीवन है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत सभी चीज़ें जैसे जलवायु है, पर्वत है, नदी है, मिट्टी है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। जलवायु और जो मिट्टी का नेचर है, और जो एक कंट्री है वो किसी से जो लैंड लॉक्ड है या नहीं है, इस तरीके की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं ये एक देश को प्रभावित करती हैं। यहाँ तक ये एक देश की जो राष्ट्रीय नीतियाँ होती हैं, वहाँ की जो सरकार होती है, उसके ढांचा, उसके कार्यों, इनको भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो राजनीतिक अनुसंधान करता होता है वह अपने अनुसंधान के अंतर्गत हमेशा जो जियोग्राफिकल परिस्थितियाँ होती हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, उनको हमेशा एक राष्ट्र की नीतियों का विश्लेषण करते हुए उनके ऊपर हमेशा उसका फोकस रहता है। आज के समय की हमारे पास में जो हमारा राजनीति विज्ञान की एक जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है जो चली आ रही है, वो जियोपॉलिटिक्स है। और जियोपॉलिटिक्स है, इसके अंतर्गत भी हम लोग जो भूगोल है और राजनीति विज्ञान है, इन दोनों के आपस में संबंधों का अध्ययन करते हैं। और हमारे पास में कुछ उदाहरण है। उदाहरण के लिए स्विट्ज़रलैंड और ब्रिटेन है, दोनों की परिस्थितियाँ राजनीति विज्ञान के
अध्ययनकर्ता या विद्यार्थी होने के नाते हम लोग जानते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मतलब स्थल अवरुद्ध, मीन्स चारों ओर से ये ज़मीन से घिरा हुआ है। जो भी कंट्रीज इसके नियर बाय है, तो ऐसी जो इसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसने स्विट्ज़रलैंड की जो नीतियां हैं, राजनीतिक जो नीतियां हैं, उन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। इसीलिए हम लोग एक देखते हैं जो स्विट्ज़रलैंड है उसको हम लोग एक तटस्थ देश के रूप में हम लोग देखते हैं। तो उसके अंतर्गत इसकी भौगोलिक परिस्थितियों का काफ़ी योगदान रहा है। ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो ब्रिटिश चैनल है, तो उसने जो ब्रिटेन का जितना विकास हुआ है या जितनी ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, उन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। राजनीति के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जितनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसने वहाँ की राजनीति को हमेशा से ही प्रभावित किया है और हमेशा से ही उसे एक नई दिशा दी है। जियो पॉलिटिक्स है, इसके अंतर्गत हम लोग जो राजनीति और भूगोल का आपस में संबंध है, और स्पेशली जो एक राष्ट्रीय शक्ति की समस्याएं हैं और सीमांत जो क्षेत्र आ जाते हैं, और जो जियोग्राफिकल जितना सराउंडिंग्स होती हैं या परिस्थितियां होती हैं या जियोग्राफिकल जो जितना वो टेरिटरी होता है और उसका और राजनीति विज्ञान का हम लोग आपस में अध्ययन देखते हैं। इसके अलावा लास्ट में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी आ जाता है। तो जो राजनीति विज्ञान है ये एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत मुख्यतः हम लोग राज्य सरकार, मतलब हम लोग इसके अंतर्गत स्पेशली जो मानवीय जीवन का राजनीतिक पक्ष है हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। और जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः है जितना भौगोलिक पक्ष है, जलवायु है, उत्पादन है, मिट्टी है, नदियां हैं, पर्वत हैं, इन सब को हम लोग स्टडी करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।